شفیق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. گڈ مارننگ. سارے نئے خوابوں کے ساتھ سلام پاکستان. میں ہوں ثنا امجد. کیسے ہیں آپ؟ اور ایک اچھی سی مسکراہٹ کے ساتھ, ایک اچھی سی سوچ کے ساتھ اپنے دن کا آغاز کریں گے. اور آج میں آپ سے یہ جاننا چاہتی ہوں, اور اس پر ہم ڈسکشن بھی کریں گے تھوڑی بہت, کہ کفایت شعاری زندگی میں کتنی امپورٹنٹ ہے, اور کون کون سی ایسی خواتین ہیں جو جب مارکیٹ جائیں یا اپنی شاپنگ کے لیے جائیں بارگیننگ کراتی ہیں. سب سے پہلے میں اپنے آپ سے پوچھتی ہوں, میں جب تک بارگیننگ نہ کراؤں نا, مجھے ایسا لگتا ہے کہ میں نے شاپنگ ہی نہیں کی ہے. مجھے مزہ نہیں آتا بارگیننگ کیے بغیر جو ہے وہ چیزیں لینا. وہ خواتین جو کہتی ہیں نہیں نہیں جو بولتے ہیں میں تو اتنے ہی پیسوں میں لے لیتا ہوں, مجھے لگتا ہے کہ وہ تھوڑی بہت جو ہے وہ سچ بات نہیں کری, کیونکہ جب تک عورت جو ہے وہ بارگیننگ نہیں کراتی نا, اس کی شاپنگ کا وہ مزہ نہیں رہتا. تو اس حوالے سے کچھ میں آج آپ سے بھی جانوں گی. لیکن ہاں, کچھ مرد ایسے ہوتے ہیں جو بس جاتے ہیں, دکاندار نے جتنے پیسے بولے بس دیے اور لیے, اور وہ خواتین سے بھی یہی کہہ رہے ہوتے ہیں کہ نہیں نہیں کوئی ضرورت نہیں ہے, بس لو, اگلی دکان پہ بھی نہیں جانا. لیکن ایسے نہیں, جب تک آپ گھومیں پھریں گے نہیں, بحث نہیں کریں گے, بارگیننگ نہیں کریں گے, تو آپ کو شاپنگ کا مزہ کیسے آئے گا, ہے نا. تو مہمان سے بھی اپنے آج اس بارے میں ہم جانیں گے, بیوٹی کی دنیا کا ایک بیٹا, کہ کس طرح آپ کم بجٹ میں رہتے ہوئے وہ اپنے ٹریٹمنٹ کو کر سکتے ہیں. تو اس حوالے سے السلام, کیسی ہیں آپ؟ الحمدللہ بالکل ٹھیک ہوں, اللہ کا بڑا احسان. ویسے سچ بات ہے نا, جب تک بارگیننگ نہ ہو مزہ نہیں آتا شاپنگ کا. اور عورت کا تصور بارگیننگ سے آتا ہے. دکاندار بھی کوئی بھی عورت جائے اسے ایکسپیکٹ ہے کہ ہر عورت بارگیننگ کرے گی, اور واقعی اسی میں مزہ ہے. ہاں, اور کفایت شعاری بھی تو ضروری ہے نا, آج بچے گا تو کل کام آئے گا. اور عورت کی یہ بھی عادت ہے جب وہ کسی سے ملتی ہے تو دوسرے سے ضرور جو اس کا ڈریس ہے, حالانکہ یہ بہت سی آؤٹ آف ایٹیکیٹس ہے, لیکن عورت اپنی نالج کے لیے, یا کسی کے شوز ہے یا پرس عورت کی کمزوری ہے یا جیولری, تو وہ اگر اچھے تعلقات ہیں تو قیمت بھی ضرور معلوم کر ہی لیتی ہے چپکے سے دبے پاؤں. اور پھر جب وہ مارکیٹ میں جاتی ہے تو اس کو آسانی ہو جاتی ہے کہ نہیں یہ مجھے غلط بتائیں. اچھا یہ بتائیں کہ اچھی بات ہے بارگیننگ کرانا یا بری بات؟ کیونکہ آج بہت اچھی بات, بہت اچھی بات, بہت کرواتی ہے, بالکل کراتی ہے عورت. لیکن میں نے کچھ لوگوں کو دیکھا ہے کہ وہ تو بہت اس لیول پر آ جاتے ہیں, اگر آگے کسی نے ایک پرائز بتایا تو ہاف پرائز کی آ کے بات کرے. آئی تھنک اتنا بھی نہیں, اتنا نہیں, تھوڑا بہت, کیونکہ اتنا لینے سے دکاندار کی نظر میں بھی آپ گرتے ہیں اور چیز آپ کو نہیں ملتی. آپ دیکھیں جو چیز آپ کو لگ رہی ہے کہ ہاں اس نے زیادہ, دکاندار اپنا بھی مارجن آف پروفٹ کبھی کبھی بہت زیادہ بڑھا دیتا ہے, تو آپ اس کو لمٹ میں رہتے ہوئے, اور جب آپ ہر روز خریداری کرتے ہیں تو عورت کو اتنا شعور آ جاتا ہے کہ یہ چیز اس قیمت میں مل سکتی ہے. اور شاپ کیپر بھی جو ہے نا وہ اپنے کلائنٹ اس کو جو آپ کا کسٹمر ہوتا ہے اس کو دیکھتے ہوئے پرائز فلکچویٹ کر رہا ہوتا ہے. ایک فکس پرائز نہیں ہوتے. اکثر آپ جاؤ نا شاپ پر تو وہ ایک آپ کو کوئی اور پرائز بتائے گا, دوسرا کچھ. تو میں یہ کہتی ہوں پہلے آپ دونوں ڈیسائیڈ کر لیں کہ ایکچوئل پرائز کیا ہے. سو آئی تھنک جو فکس پرائز والی جگہ ہوتی ہے وہ پھر زیادہ مناسب ہے کہ شاید وہ اپنا ایک پروفٹ فکس کر لیتے ہیں. بالکل بالکل, وہ لیکن کم ہے ایسی جگہ. زیادہ تر یہ ہے کہ بارگیننگ ہے, اور بارگیننگ میں ایک لطف ہے. جب آپ گئے ہیں شاپنگ کے لیے تو ظاہر ہے کہ ہمیں اپنا کافی سارا وقت اپنی شاپنگ کو دینا ہوتا ہے, تو اس میں مزہ بھی ہے, انجوائمنٹ بھی ہے, اور بچت بھی. اچھا, تو جو آپ کا کمپینین شپ ہوتے ہیں, اکثر ہسبینڈ جو ہیں, یہ میں آپ اپنے بھائی کے ساتھ جاؤں, میں اپنے بھائی کے ساتھ جاؤں, تو وہ کبھی مجھے جو ہے وہ ساتھ ہی نہیں جاتا. وہ کہے گا تم تو بارگیننگ کرو. میں کہتی ہوں مزہ نہیں آئے گا مجھے شاپنگ. مرد حضرات ایک تو یہ کہ بہت زیادہ دیالو ہوتے ہیں, اس لیے وہ ایک چیز پر فوری طور پر ایگری ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں دے دو. دوسرے یہ کہ جب وہ اپنی مائیں بہنیں یا اپنی وائف کے ساتھ جاتے ہیں تو ان کے ذہن میں ایک یہ بھی کانسیپٹ ہوتا ہے کہ اگر ہم بارگیننگ کریں گے تو زیادہ سے زیادہ ٹائم ہمارا اس دکان پر, اس شاپ پر خرچ ہوگا, اور اس دوران ہماری ماں بہن بے پردہ ہو رہی ہے. ہاں شاید بالکل, یہ بھی ایک کانسیپٹ ہے. میں نے جو ہے بہت اس کو, وہ کیا میرا ایک بھائی ماشاءاللہ مولوی ہے, تو اس کا ہمیشہ یہی کانسیپٹ ہوتا ہے کہ جب جاؤ بہت سی پردے میں جاؤ اور بالکل بارگیننگ نہ کرو, تاکہ دکاندار کی نظر میں, مارکیٹ کی نظر میں تم زیادہ دیر نہ رہو, فوری طور پہ واپس آ جاؤ. اپنے اپنے کانسیپٹ. ہاں یہی دیکھیں نا کہ ہر شخص کا اس بات کو سمجھنے کا جو زاویہ ہے وہ تھوڑا مختلف ہوتا ہے. آپ بھی مجھے بتائیے گا کہ آپ کا شمار کن لوگوں میں ہوتا ہے جو بہت زیادہ بارگیننگ کراتے ہیں. اچھا مرد بھی ہیں کچھ جو بارگیننگ کروا رہے ہوتے ہیں, ایسا نہیں ہے کہ وہ بھی کہتے ہیں نہیں لوگ زیادہ قیمتوں میں چیزیں دے رہے ہوتے ہیں. تو اس حوالے سے آج ڈسکشن رہے گی. آپ سے نمبر ہے 0213222070. آپ کال کر سکتے ہیں, پروگرام میں شامل ہو سکتے ہیں. میں نے تو اپنی مما سے سیکھی ہے بارگیننگ کرنا, وہ بہت اچھی بارگیننگ کرتی ہیں. لیکن کچھ لوگوں کو آپ جب مارکیٹ جاتی ہیں تو آپ کی کوشش ہوتی ہے سب کی شاپنگ کریں یا صرف اپنی انڈیویجول؟ میں ہی سب کی کرتی ہوں پوری فیملی میں, ایون یہ کہ اپنے بیٹوں کی بھی میں ہی کرتی ہوں.
اچھا اوکے, مطلب پراپر جو ہے وہ مدر والی فرائض جو ہے وہ نبھائے جا رہے ہیں. اچھا تھوڑی سی بیوٹی کے حوالے سے ہم بات کریں گے کہ اکثر لوگ جب شاپ پر جاتے ہیں تو ہمارے یہاں بدقسمتی سے جب آپ میک اپ کی شاپ پر جائیں تو وہی آپ کو گائیڈ کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ بیس لے لیں, یہ کلینزر لے لیں, حالانکہ آپ کی اسکن ٹون کا بھی ان کو نہیں پتا ہوتا. تو اس میں بھی آپ کا بجٹ فکس کرنا یا بجٹ ایک سلیکٹ کرنا ضروری ہوتا ہے. تو آپ کیسے سمجھتی ہیں کہ ہمیں کیا کیا مین چیزیں ہیں جو آپ کے گھر میں موجود ہونی چاہیے پروڈکٹس کے حوالے سے؟ سب سے پہلے چونکہ میں ہی ہربل پہ کام کرتی ہوں, بیوٹی پہ کام کرتی ہوں, تو اپنی اسکن کی ٹون کو سمجھنا بہت ہی آسان ہے. ٹھیک ہے. بہت ہی زیادہ تر لوگوں کی, جیسے کراچی کا جو ویدر ہے یہ بالکل معتدل ہے, نہ یہاں گرمی زیادہ ہوتی ہے نہ یہاں سردی زیادہ ہوتی ہے, تو یہاں کی جو اسکن ہے نارمل ہے. بالکل سردیوں میں تھوڑی ہلکی زیادہ نہیں ہوتی بہت. ہمارے یعنی جو آپ پنجاب سائڈ پہ چلی جائیں وہاں کی گرمی آپ دیکھیں تو میں کہتی ہوں کراچی جنت ہے, بہت اچھا ہے کراچی. تو یہاں پر ویدر کے لحاظ سے اسکن ہمیشہ ٹون اپ ہی رہتی ہے. بہت کم ایسا ہوتا ہے جو بہت ہی ایکسٹریم والی اسکن ہے, جیسے بہت زیادہ آئلی ہے تو گرمی اگر زیادہ بڑھتی ہے تو اسکن زیادہ آئلی ہو جاتی ہے. سردی اگر زیادہ جو کہ چند دنوں کی ہوتی ہے اس میں زیادہ ڈرائی ہو جاتی ہے. تو چونکہ وہ اتنا تھوڑا سا فرق ہوتا ہے تو اس کے لیے یہ جو پروڈکٹ آپ کے سامنے ہیں یہ بہت ہی آسانی کے ساتھ کام کرتی ہیں. جو بھی ہماری پروڈکٹ کے یوزر ہیں یا یوزر نہیں ہیں, جب ہم سے وہ مشورہ کرتے ہیں سردیوں کے موسم میں کہ رانی آپا ہماری اسکن بہت ڈرائی ہو رہی ہے, یہی پرابلم ہوتا ہے, کسی کی ہلکی سی ڈرائی ہوتی ہے. رانی آپا کیا کوئی ٹیسٹ ہو سکتا ہے آپ جس طرح کہ میں جان سکوں کہ میری اسکن ڈرائی ہے, نارمل ہے, یا سیبم میرا بہت زیادہ اسکن پر آتا ہے, یہ ہم جانیں گے آسان طریقہ کیسے. پہلے کالر شامل کر لیتی ہوں. السلام علیکم. ہیلو. ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون ہے ہمارے ساتھ؟ ابھی میں نادیہ بات کر رہی ہوں. اچھا نادیہ, کہاں سے کال کر رہی ہو؟ فیصل آباد سے. نادیہ شاپنگ کا کتنا شوق ہے اور کتنی بارگیننگ کرواتی ہو؟ شوق تو بہت زیادہ ہے لیکن کم جاتے ہیں ہم لوگ. اچھا کیوں؟ ویسے گھر میں ٹائم ہی نہیں ملتا ہے اپنے میاں کے. تو میاں بارگیننگ کرانے دیتے ہیں؟ وہی آ گئی. اچھا رانی جی ہمارے ساتھ موجود ہیں, کچھ پوچھیں گے آپ ان سے؟ نہیں میں نے یہ ان سے پوچھنا ہے کہ یہ ہونٹوں کے پاس ہے نا داغ بن جاتے ہیں پانی والے نا, سمپل سے بنتے ہیں, جب میں پھوڑتی ہوں اس کا نشان. سمجھ آپ کی کال کے انہوں نے کہا میں اس کو پنچ کر دیتی ہوں. جی جی, دانے اگر پنچ کر دیے جائیں یا نہ بھی کیے جائیں, جب دانے سوکھتے ہیں تو کالے نکلیے, ڈارک سرکل کے لیے رنگ کو صاف کریں, اپنی ڈارکنیس سے چھٹکارا حاصل کرنا چاہتا ہے, اور عورت کا حق بھی ہے خوبصورت لگنا, اور اس کی ضرورت بھی ہے کہ عورت کے بارے میں ہے کہ وجود زن سے ہے تصویر کائنات میں رنگ. جتنی خوبصورت تصویر ہوگی اس میں جتنے حسین رنگ بھرے ہوں گے وہ تصویر اتنی زیادہ حسین لگے گی. اور عورت کو اپنی اسی لیے کیئر کا بہت زیادہ خیال کرنا چاہیے. اور جیسے کہ ہمارے کراچی کافی ماڈرن شہر ہے تو اس میں خواتین بے پردگی کے ساتھ باہر آتی جاتی ہیں کیونکہ بہت زیادہ ماڈرن, لیکن ہمارے جو دوسرے علاقے ہیں اس میں تھوڑے کنزرویٹو لوگ ہیں, پردے والے زیادہ ہیں اور گھروں میں زیادہ تر اپنا ٹائم اسپینڈ کرتے ہیں. یہاں کی عورت کو زیادہ ٹائم ملتا ہے شاپنگ کا, لیکن وہاں کی عورتوں کو نہیں ملتا. تو ہم نے, جیسے ہماری بہن کا فون آیا تھا, ہم انہی کے مسائل کو حل کرنے کے لیے, اور کراچی کی وہ تمام خواتین جو مارکیٹس میں بہت زیادہ نہیں جا سکتی اور پراپر معلومات چاہتی ہیں, تو اس کے لیے میری گڑیا آپ ہماری فیکل کے نام سے جو کریم ہے, یہ گرین کلر کی پیکنگ میں ہے, یہ آل ٹائپ آف وائٹننگ کے لیے ہے. یہ والی کریم رنگ گورا کرتی ہے, داغ دھبے جھائیاں, پگمنٹیشن, آنکھوں کے گرد حلقے, دانوں کے کالے نشان یعنی ہر طرح کے ڈارکنیس کے لیے. جہاں کہیں بھی آپ کے کوئی پیچ زیادہ ڈارک ہے وہاں پر آپ لگائیے, اور چہرے پر, پورے چہرے پر آپ لگائیں. جب پورے چہرے پر لگا رہی ہو تو آنکھوں کے اوپر بھی لگائیے اور آنکھوں کے نیچے بھی لگائیے. اوکے, مطلب آپ کہہ رہی ہیں کہ لڈ پر بھی اس کو اپلائی کریں؟ جی بالکل, آپ لڈ پر بھی اپلائی کریں. آپ کا لڈ جو ہے نا وہ بلیک رہ جاتا ہے, فیس آپ کا نیٹ ہو جاتا ہے. جی, اور تمام کریمز آنکھوں کے قریب نہیں لگائی جا سکتی, ان پر سختی سے ہدایات بھی درج ہوتی ہیں. لیکن ہماری کریم چونکہ ہربل ہے, جڑی بوٹیوں پر مبنی ہے, تو اس لیے ہم کہتے ہیں کہ پوری اسکن کو ایک ٹون میں ہونا چاہیے. آنکھوں کے اوپر بھی لگائیں اور آنکھوں کے نیچے بھی لگائیں, لیکن اندر مطلب پوری رات لگی رہنے دیں. صبح حسب معمول ہمارے ہی فیس واش کے ساتھ واش کریں, اور اس کے بہترین رزلٹ کے لیے ہفتے میں 2 بار اگر ہمارا فیس پالش بھی استعمال کیا جائے تو یہ بہت اچھا رزلٹ دیتا ہے. اوکے جی, ایک کالر شامل کریں, بہت دیر سے ہولڈ پر ہیں ہمارے ساتھ. السلام علیکم. ہیلو. وعلیکم السلام. کیسی ہیں سنا؟ میں ٹھیک ہوں, آپ کیسی ہیں؟ نام بتائیے اپنا. میں ٹھیک ہوں, میں بات کر رہی ہوں راولپنڈی سے. جی نورین, کیا پوچھنا چاہو گی رانی صاحبہ سے؟ السلام علیکم رانی باجی.
वालेकुम अस्सलाम बेटा, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसी हैं? बस ठीक ठाक, आप बहुत प्यारी दोनों लग रही हैं। हेलो नौरीन। जी जी। हाँ जी रानी बाजी। हेलो हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम बेटा, बोलिए। जी जी वालेकुम सलाम। रानी बाजी, मुझे आपसे पूछना है कि मेरी स्किन पे, मैंने पहले भी आपको कॉल किया था कि मेरी स्किन पे गड़े बन गए हैं और कुछ चीजें आपकी मेरे पास हैं भी, और मैं आपसे पूछना चाहती कि मैं आपकी कौन सी क्रीम लगाऊं, मेरे ये जो स्किन पे बहुत सारे गड़े बन गए हैं। अच्छा ठीक है बेटा, ओके, हम ऑन एयर डिस्कस करते हैं। थैंक यू सो मच नौरीन जी। अच्छा मेरी शहजादी, गड़े एक डिफरेंट मैटर है, गड़ों के लिए कोई क्रीम नहीं। उसके बाद ये गहरे गड़े बन जाते हैं और अल्लाह के फजल से इन गड़े ये इसका इलाज किसी पैथी में भी मुमकिन नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ मेरी हर्बल से मुमकिन है। और इसके लिए मेरे पास एक प्रोडक्ट है जो कि रानीज स्टार्च पैक के नाम से है, और इस पैक को, ये जो साचे हैं इसमें से एक पैक है, इसमें 4 साचे हैं, एक कॉन्स्टिपेशन पैक है, एक उपटन है, एक व्हाइटनिंग मास्क है और एक स्टार्च पैक है। और वही स्टार्च पैक जो मैं आपको बताने जा रही हूँ, आप ये कम से कम 6 माह जरूर इस्तेमाल करें। और इस स्टार्च पैक को पैकेट वाली दही में मिलाकर लगाना है। ये एक पैकेट पूरे 1 माह का है। पैकेट वाला दही लेंगे, पैकेट वाला दही जो कि विदाउट क्रीम हो। हमारी जो फ्रेश दही होती है ये फुल क्रीम होती है, और फुल क्रीम दही अगर स्टार्च वाले फेस पर लगाएंगे, जाहिर है स्कार्स या तो एक्नी से होते हैं या चिकन पॉक्स से, तो फुल क्रीम दही लगाने से आपका ऑयल एक्टिव हो जाएगा और चेहरे पर मजीद दाने होंगे और काला पड़ जाएगा चेहरा। पैकेट स्टार्च पैक और एक पैकेट दही का मिलाकर मिक्स करके पेस्ट बनाएं और अपने जिन जगहों की मसाज करें, बाकी की कोटिंग कर लें। और मान नहीं कर रही तो फिर रात को पूरी रात लगा रहने दें, तो बहुत जल्दी लगा के सो जाएं। क्योंकि हर्बल है, हर्बल फायदा देगा इनको। अच्छा ओके ऑलराइट। आप अगर लगा कर रात को लगा के सो जाएं तो फिर तो उलझन से बच जाते हैं। और दूसरी के कुछ चीजें लगा के इंसान को शर्म आती है, अगर फैमिली में है, ज्वाइंट फैमिली में है, तो ऐसे काम रात अल्लाह पाक ने इसीलिए बनाई है, तो आप करें। और इसके साथ ही हमारी ये जो क्रीम्स हैं, ये ऑल टाइप ऑफ व्हाइटनिंग के लिए, ये ऑल टाइप ऑफ टाइटनिंग के लिए है। जो ऑल टाइप ऑफ टाइटनिंग के लिए ये फेयरनेस के नाम से है, ये स्किन को टाइट करती है, रिंग करती है। 30 साल के अंदर अंदर जो लड़के और लड़कियां हैं वो सिर्फ रानीज फ्रेकल क्रीम इस्तेमाल करें, क्योंकि उनको सिर्फ व्हाइटनिंग की जरूरत है। और जो लोग 30 साल क्रॉस कर चुके हैं, मर्द और औरतें दोनों के लिए हमारी प्रोडक्ट, तो वो इन दोनों क्रीमों को यानी व्हाइटनिंग और टाइटनिंग को मिक्स करके किसी दूसरे जार में रख लें। इस्तेमाल सिर्फ रात ही को करनी है। हस्बे मामूल हमारा ही फेस वॉश इस्तेमाल करना है। दिन में जितनी बार मुंह धोएं हमारे ही फेस वॉश के साथ धोएं, रात को खास तौर से धोएं। फेस वॉश का इस्तेमाल जब भी आप कहते हैं कि ना, जो नॉर्मल भी आप जो लोग घरों में फेस वॉश यूज कर रहे होते हैं, इनका जो रानी साहिबा का भी फेस वॉश मौजूद है, तो नॉर्मली कितनी बार दिन में जो है वो आपको फेस वॉश करना है? क्योंकि बार बार अगर आप दिन में 6 बार अगर फेस वॉश करते हैं तो आप 6 बार ही आप फेस वॉश का इस्तेमाल करेंगे। 5 बार हमें दिन में वजू करना लाजमी ही है। और 5 बार में कराची का वेदर कुछ ऐसा है कि बहुत ज्यादा इसके अंदर पॉल्यूशन है, तो हमें कम से कम 5 बार जब हम अपना वजू कर रहे हैं तो बेहतर ये होगा कि अपने हाथों को और अपने चेहरे को रानीज फेस वॉश के साथ वॉश करें। रानीज फेस वॉश की एक खास खूबी ये है कि एक ही प्रोडक्ट पूरी फैमिली के लिए काफी है, यानी एक ही हमारा फेस वॉश है। ये ऑल टाइप ऑफ स्किन के लिए है, ऑल टाइप ऑफ सीजन के लिए है और ऑल टाइप ऑफ एज के लिए है। अच्छा ओके, क्योंकि मेरा अगला सवाल यही था कि अब आप घर में आपके पेरेंट्स की स्किन अलग होती है, आपकी अलग स्किन है, आपके भाई की अलग है, ऑयली है, या किसी को जो है जिस तरह जेल फॉर्म में अक्सर आ रहे होते हैं, ये ऑयली स्किन के लिए, ड्राई स्किन के लिए, कॉम्बिनेशन स्किन के लिए, यानी ऑल टाइप ऑफ स्किन के लिए है ये। तो आप और ऑयली के लिए, ड्राई के लिए, कॉम्बिनेशन के लिए, नॉर्मल स्किन के लिए, हर स्किन के लिए इसको आप इस्तेमाल करें। दिन में 5 बार तो लाजमी करें। अगर बहुत ज्यादा स्किन है, ऑयली है, तो सम टाइम 5 से 6 बार भी हो सकता है, 7 बार भी। अगर बच्चियां यूनिवर्सिटी में हैं, कॉलेज में हैं, बाहर हैं, तो उनको बार बार अपने ब्रेक में, जिनको बहुत ज्यादा ऑयल आ जाता है, एक्नी हो जाती है, तो वो ज्यादा वॉश करते हैं ताकि स्किन ड्राई रहे, तो उनका फेस कंट्रोल रहता है। और इन प्रोडक्ट के साथ ये दोनों क्रीमें रात को लगानी है, दिन में जितनी बेस पॉलिश इस्तेमाल करनी है। इसका पूरा तरीका इस्तेमाल इसके अंदर है, लेकिन इसमें ये 2 प्रोडक्ट हैं कि जैसा कि इसके नाम से जाहिर नहीं है, 20 मिनट के लिए किसी किस्म का एक्स्ट्रा स्किन केयर प्रोडक्ट की जरूरत नहीं रहती। ये पाउडर है, ये लिक्विड है। 1 टीस्पून पाउडर लें, थोड़ा सा लिक्विड मिलाएं, मिक्स करके पेस्ट बना लें
और आईब्रोज बचाकर और सर के बाल बचाकर 20 मिनट के लिए लगाकर छोड़ दें। 20 मिनट के बाद ब्लीचिंग एजेंट है क्या इसके अंदर? जी हाँ, हर्बल का। और वो हर्बल का जो ब्लीचिंग एजेंट है मैं ऑन एयर भी कई बार बता चुकी हूँ, और वो भी हर्बल है। उसमें है 2 लौंगे, 2 बादाम और 1 पिंच खाने का सोडा, और उसको जो हम पेस्ट बनाएंगे वो लेमन के जूस से बनाएंगे, यानी नींबू के जूस से। उसकी आमेजिश के साथ ये बना हुआ है। तो अल्लाह के फजल से इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं, लेकिन चूंकि ये ब्लीचिंग इफेक्ट बन जाता है। मतलब जिन लोगों को यहाँ पर लाइट हेयर्स होते हैं, फेशियल हेयर्स होते हैं, थोड़े डार्क हो रहे होते हैं, आप वैक्स भी नहीं करवा सकते। कुछ लोग अवॉइड करते हैं कि फेस वैक्स ना कराया जाए, तो अगर आप इसका जो है इसको अप्लाई करेंगे तो ये जो आपके लाइट हेयर्स हैं ये थोड़े से ब्लॉन्ड हो जाएंगे, बिल्कुल ब्लॉन्ड हो जाएंगे। और बिल्कुल आपको बताया ना मैंने कि बात लोगों को ब्लीच की बहुत जरूरत होती है, और ब्लीच की जब वो लोग इस्तेमाल करते हैं वो ना 15 मिनट में बहुत उनको फ्रेश लगता है, लेकिन थोड़ी देर के बाद खुश हो जाता है एकदम कलर, और वो ज्यादा प्रॉब्लम का शिकार हो जाते हैं, हेयर इरिटेट हो जाता है उनका, चूंकि हमारी हर्बल प्रोडक्ट है। एक कॉलर भी है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन है हमारे साथ? मैं शाजिया बात कर रही हूँ वाक एंड से। कैसी हैं आप शाजिया? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक ठाक। आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा जा रहा है। आज तो रानी आप आई हैं। हाँ जी बिल्कुल। मुझे इनसे सवाल करना था, मैंने डाई के बारे में पूछना था कि मतलब हम लोग जो दूसरे डाई यूज करते हैं उससे मेरे बाल बहुत ज्यादा खराब हो चुके हैं। मैंने फिर मेहंदी अप्लाई की तो उससे भी मुझे वो कलर नहीं मिला जो मैं चाह रही थी। तो मैं चाहती हूँ कि मतलब इनकी भी कोई ऐसी प्रोडक्ट है जिसमें साइड इफेक्ट्स ना हो, और बालों का कलर ब्लैक और नेचुरल ब्राउन से हट कर कोई कलर हो, लाइट सा ब्राउन आए जैसे, तो उस कलर में कोई बना, क्योंकि मैंने दूसरी प्रोडक्ट मंगवाई है लेकिन वो मेरे बिल्कुल ब्लैक में आ गया है। राइट शाजिया, हम डिस्कस करेंगे आपके हेयर डाई के इशू को, लेकिन पहले मुझे एक ब्रेक लेना है, तो लेते हैं एक ब्रेक और मिलते हैं आपसे एक ब्रेक के बाद। सलाम पाकिस्तान। आम खबर से आगाह करते चलें, कराची में कोरम पूरा न होने के बाद सिंध असेंबली का इजलास पीर तक मुलतवी कर दिया गया है। अब तक की अहम खबर सामने आ रही है, कराची में कोरम पूरा न होने के बाद सिंध असेंबली का इजलास पीर तक मुलतवी कर दिया है। इसी हवाले से हमारे लाइन पर मौजूद है वक्ती उसके नुमाइंदे ए के मोहसिन। इस हवाले से अपडेट कीजिएगा। कोरम पूरा न होने के बाद सिंध असेंबली का इजलास पीर तक मुलतवी कर दिया गया है। जी बिल्कुल, इजलास पीर तक मुलतवी किया है आगा सिराज दुरानी स्पीकर सिंध असेंबली ने। जब आगा सिराज दुरानी स्पीकर सिंध 10:07 पर हॉल में पहुंचे, असेंबली हॉल में, तो उन्होंने देखा कि सिर्फ 2 मेंबरान, एक डॉक्टर सिकंदर मेंद्रो वजीर पार्लिमानी उमूर और दूसरे सीनियर मिनिस्टर वजीर तालीम निसार खोड़ो मौजूद थे। और स्पीकर ने आकर पूछा कि बाकी मेंबरान क्यों नहीं आते, क्यों नहीं हैं, जिसके बाद इस हवाले से बहुत सारी बातें भी की जा रही हैं। निसार खोड़ो ने आके मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि स्पीकर का राइट है कि वो कहता हम जो दूसरे हलके हैं अपोजिशन हलके, वो ये कह रहे हैं कि चूंकि एमक्यूएम के खिलाफ जो बाद ऐसे दहशतगर्द पकड़े गए हैं जिनका ताल्लुक एमक्यूएम से जाहिर किया जा रहा है, लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज, और वो आज चूंकि इसमें जरूर बहस होनी थी और इसमें हुकूमत का और एमक्यूएम का आपस में टकराव होना था, ये मुतवक्किल था, इस वजह से ये इजलास मुलतवी किया गया है। बज़ाहिर वो जाहिर नहीं करना चाह रहे स्पीकर, ताहम बादियों नजर में। शुक्रिया ए के मोहसिन हमें तफसीलात से आगाह करने का। एक और अहम खबर से आगाह करते चलें, कराची में महमूदाबाद में रेंजर्स का सर्च ऑपरेशन किया गया है और इस ऑपरेशन के दौरान दर्जन से ज्यादा अफराद को जेर हिरासत ले लिया गया है और इन्हें नामालूम मुकाम पर मुंतकिल कर दिया है। इसी वाले से हमारे लाइन पर मौजूद है वक्ती उसके नुमाइंदे अजहर जैदी, जान तक उनके पास आधा तक अपडेट्स हैं। अजहर जैदी, इस हवाले से अपडेट कीजिएगा, इस वक्त महमूदाबाद में रेंजर्स का सर्च ऑपरेशन जारी है क्या? जी इमरान, महमूदाबाद के इलाके में जो है रेंजर्स ने सर्च ऑपरेशन किया है। सर्च ऑपरेशन के दौरान जो है महमूदाबाद के तमाम दाखिली और खारजी रास्ते जो है वो सील कर दिए थे और ऑपरेशन के दौरान जो है दर्जन से ज्यादा अफराद को जो है मुश्तबा अफराद को हिरासत में लिया गया है और जराये के मुताबिक हिरासत में लिए गए अफराद से असला भी बरामद हुआ है। जबकि ऑपरेशन के दौरान जो है वो घर घर तलाशी का अमल भी लिया गया, जबकि अब ऑपरेशन जो है वो इख्तिताम हो चुका है, खत्म हो चुका है। ऑपरेशन में रेंजर्स की भारी नफरी के साथ जो है दहशतगर्दी स्क्वाड विंग के जो है एहलकार भी शामिल थे, जबकि रेंजर्स एहलकारों के साथ लेडी एहलकार भी शामिल थे। जी बहुत शुक्रिया अजहर जैदी हमें तफसीलात से आगाह करने का। ये थी वक्त ताज़ा तरीन।
लो हो गया मैच शुरू। गलियां सुनसान, बाजार वीरान, इधर कैच छूटा, उधर दिल टूटा। नहीं, लास्ट बॉल पे छक्का चाहिए। अरे कमर्शियल ब्रेक है, जरा चाय तो पिलाइए। हम जीतें या हारें, पूरा जोर लगाते हैं। मैदान में 11 नहीं 18 करोड़ खेलने जाते हैं। हार गए तो भूल जाओ, जीत गए तो खुशी मनाओ। अपना अपना कप उठाओ, वाइटल पियो। Once again, welcome back. सलाम पाकिस्तान। नाज़रीन, रानी आपा हमारे साथ मौजूद हैं और मुख्तलिफ प्रॉब्लम्स को हम अपने प्रोग्राम में डिस्कस कर रहे हैं। और आज मैंने आपसे ये भी पूछा है कि आप कितनी बार्गेनिंग कराती हैं, ये आपने मुझे बताना है। या आप कहती हैं नहीं क्या ज़रूरत है पैसे बचाने की, किफ़ायत चोरी करने की। लेकिन औरत में डू यू थिंक हिस्स होती है पैसे बचाने की? हिस्स होती है, और इसीलिए कि महंगी जो प्रोडक्ट पाकिस्तान में अवेलेबल हैं, जो सेंसिबल ख़वातीन हैं, वो कहती हैं नहीं भाई इतने पैसे हम अपने बचाएं, अपनी फैमिली पर खर्च करें। तो चूंकि मैं भी एक औरत हूँ और मैं समझती हूँ कि औरत सब कुछ कर लेती है, लेकिन अपनी वो तमाम खर्च अपनी फैमिली के लिए खर्च करना चाहती है, लेकिन अपने ऊपर बहुत कम लगाती है, हालांकि उसके लिए सबसे ज्यादा जरूरत है। तो हमने ख़वातीन की जरूरत को मलहूज़े नजर रखते हुए ऐसी प्रोडक्ट बनाई हैं जो उनकी जेब पर असर अंदाज ना हो और बहुत ही आसानी के साथ अपनी ब्यूटी का वो ख्याल कर सके। राइट। और आप देखें, अगर आप एक प्रोडक्ट लेते भी हैं तो एटलीस्ट 2-3 मंथ्स तो वो आपकी प्रोडक्ट चलती है। तो अगर आप साल में आप अगर 2 बार या 3 बार भी एक बजट बनाते हैं अपना, तो आई थिंक आप बहुत बेहतर तरीके से अपने आप को मेंटेन कर सकते हैं। अच्छा, हाउ यू मैनेज योर सेल्फ, दैट इज रियली इंपॉर्टेंट। और सुना कि मेरी जो प्रोडक्ट है इतनी यानी कम कीमत है, इतनी नॉर्मल इसकी कीमत है कि समटाइम जो ख़वातीन पहली बार हमारे पास आती हैं, हम अपने प्रोडक्ट के बारे में हमसे मालूमात करती हैं या हमारी फेसबुक ज्वाइन, इतनी कम कीमत से कैसे हैं आपकी प्रोडक्ट की। तो मैं उनसे कहती हूँ कि एक तो ये हर्बल है, दूसरी ये कि मैं खुद एक पाकिस्तानी हूँ, एक बहुत ही मुतवस्सित घराने से मेरा ताल्लुक है और मेरा जो ताल्लुक रहता है वो भी 24 घंटे ऐसी ख़वातीन से रहता है जो मेरे ही स्टैंडर्ड की हैं। तो तमाम लोगों को अपनी ब्यूटी का ख्याल रखना है और मसाइल भी ज्यादातर मिडिल जो तबका है उसमें ज्यादा होते हैं, तो उनको सबसे ज्यादा जरूरत है। तो अगर हम उन्हीं की पहुंच से दूर हो जाएंगे तो किसी चीज का फायदा नहीं होगा। अच्छा, फेशियल जो है उसकी चाहे मर्द हो, अब तो मर्द भी जाते हैं, आप देखिए सैलून पर और बैठे हुए हैं और सारी तैयारियां हो रही होती हैं। तो मर्द हो या ख़वातीन हो, स्किन को कितनी जरूरत है फेशियल की और मंथ में कितनी बार कराना? बहुत ज्यादा जरूरत है। अगर जरूरत स्किन ज्यादा डल हो गई है तो मंथ में आप 2 बार तो लाजमी करा ही लें, वरना 1 माह में 1 बार नॉर्मल स्किन के लिए भी फेशियल सख्त जरूरत है। अगर आप ये महसूस कर रही हैं कि मेरी स्किन को किसी केयर की जरूरत नहीं है, तब भी मंथ में 1 बार फेशियल कराना मर्द औरत के लिए जरूरी है, अगर वो अपनी स्किन को बेहतर हमेशा के लिए। क्योंकि जो फेशियल है उसकी जो एक थ्योरी है वो ये है कि वो आपके डेड सेल को एक्टिव कर देती है, और उसका जो मसाज है वो जाहिर है देखिए सबसे कम ब्लड सर्कुलेशन हमारे फेस की तरफ होता है। वो जब होता है क्योंकि पूरे दिन हमारी बॉडी एक्टिव होती है और फेस पर ब्लड सर्कुलेशन रात को सोते वक्त होता है या दिन को जब हम लेटते हैं, और इसको जाहिर है कि और औरतों के पास तो इस टाइम का दौरानिया बहुत ही कम होता है और रात को भी बहुत डिस्टर्ब होती हैं, उसी की वजह से आंखों पे हल्के पड़ जाते हैं, चेहरे पर पिगमेंटेशन हो जाती है। तो कहते हैं ना कि आपको अपनी लाइफ में एक्सरसाइज को इम्पोर्टेंट रखना चाहिए। जब आप अपने हाथों को ऊपर स्ट्रेट कर और आप नीचे पैरों की तरफ झुकते हैं तो आपकी ब्लड सर्कुलेशन जो है वो आपके दिमाग तक पहुंचती है, आपके चेहरे को भी फ्रेश करती है। लेकिन हम जब सजदे में जाते हैं, हम नमाज पढ़ते हैं, उस टाइम पर भी यही पोस्चर आप देखें, उसमें भी हमारे जहन को, दिमाग को जो है ब्लड की सर्कुलेशन बेहतर तरीके से हो रही होती है। तो ये जो थ्योरीज है ना, इनको समझेंगे तो लाइफ हमारी ईजी हो जाएगी, बहुत ईजी हो जाएगी। और आपको मजीद ईजी करने के लिए हमारी ये 4 फेशियल किट्स आपके सामने हैं, जिसमें नॉर्मल है, हर्बल है, एक्नी है और व्हाइटनिंग की है। सबसे ज्यादा डिमांडिंग हमारी किट रानीज व्हाइटनिंग फेशियल किट है। उसके बाद हर्बल का चूंकि दौर है इसलिए हर्बल के लोग बहुत ज्यादा डिमांड करते हैं, और एक्नी एक जरूरत है। जो लोग एक्नी का के क्लाइंट हैं, एक्नी के पेशेंट हैं, तो सबसे पहले तो मैं उन्हें बता देना चाहती हूँ कि पाकिस्तान भर में शायद मुझसे बेहतर कोई और एक्नी का ट्रीटमेंट नहीं कर सकता। मैं सिर्फ 6 से 8 वीक लेती हूँ और वीक में 1 बार अपने क्लाइंट को बुलाती हूँ और पहले ही सिटिंग और चैलेंज से करती हूँ, और पहली सिटिंग में
میں ان کو کہتی ہوں کہ ویک کی 1 دن کی ڈاکٹر میں ہوں اور 7 ڈیز کی ڈاکٹر آپ خود ہے. تو اس کے لیے آپ کو میرا یہ ایکنی پیک, میرا فیس واش اور یہی فیس پالش استعمال کرنی ہوتی ہے. ہر ویک میرے پاس آنا ہوتا ہے. سیویئر سے سیویئر ایکنی 6 سے 8 ویک میں ختم کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے جی, تو میں اناؤنس کرتی ہوں اگر کسی کو بہت زیادہ سیویئر ایکنی ہے تو آپ ضرور ہم سے کانٹیکٹ کریں. رانی باجی یہاں پر موجود ہیں. اچھا, میں کبھی ان کو آپا کہہ رہی ہوں, کبھی باجی. میں ابھی تک کنفیوز ہوں. میں آپ سے پوچھ لیتی ہوں آپ کیا سننا پسند جو آپ کا دل ہے, جو میں محبت سے کہوں نا آپ کو. ٹھیک ہے جی. اچھا, ایک اور کالر ہے لائن پر. اوکے, السلام علیکم. ہیلو. السلام, کیا حال ہے آپ کا؟ میں ٹھیک ہوں. کون بات کر رہی ہیں؟ میں ماریا بول رہی ہوں. جی ماریا, کہیے. میں رانی آپا سے بات کرنا چاہتی ہوں. رانی آپا. وعلیکم السلام بیٹا. رانی آپا, یہ بتائیے گا کہ آج کل کے موسم میں بہت ڈرائی اسکن ہو رہی ہے. اب جو بھی ہم یوز کرتے ہیں مطلب ڈرائی اسکن پھر بھی رہتی ہے, تو ایسا کوئی ماسک جو ہم آرام سے گھر میں بنا سکیں اور فیس گلو کرے جس کی وجہ سے. اچھا, آپ کیا کہہ رہی ہیں, ایچنگ رہتی ہے یا کیا پرابلم ہے اسکن پر؟ نہیں, ڈرائینس رہتی ہے. اچھا, آپ موئسچر رکھتی ہیں اپنی اسکن کو, موئسچرائزر وغیرہ یوز کرتی ہیں؟ بالکل بالکل یوز کرتی ہوں. اچھا, اس کے باوجود بھی رہتی ہے. رائٹ, ہم ڈسکس کر لیتے ہیں. تھینک یو سو مچ آپ کی کال کا. اچھا, ماریا سے پہلے ایک اور کالر ہے اور ان کا سوال جو ہے وہ MCR میں, کیا نام ہے ان کا؟ حامد صاحب. اوکے, رائٹ. حامد صاحب نے پوچھا ہے کہ ان کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا اور ایکسیڈنٹ کی وجہ سے ان کے چہرے پر بھی کچھ اسکارز آئے تھے, تو الحمدللہ اب زخم تو ٹھیک ہو گئے ہیں بٹ نشانات رہ گئے ہیں چہرے. میرے بھائی, آپ فوری طور پر یہ رانیز ہربل کی رانیز فیکل کریم کا استعمال آج ہی سے شروع کر دیں. اور اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اتنے ہیوی ٹریٹمنٹ کے بعد اسکن پر کچھ لوزنگ بھی آ گئی ہے تو دونوں کریموں کو آپ ملا کر استعمال کریں. اور وہ ایریا پورے چہرے پر آپ کو لگانی ہے, آنکھوں کے نیچے, آنکھوں کے اوپر, کیونکہ ہر طرح کے نشانات کے لیے, داغ دھبوں کے لیے بہترین ہے. اس کا کوئی سائڈ افیکٹ نہیں ہے. جگہوں پر جہاں پر آپ لیئر لگا کر رکھیں رات کو, دن کو تو ظاہر مرد جو جگہ جو پیچ زیادہ ڈارک لگے اس پر آپ ایک لیئر لگا کر رکھیں. اور ویسے آپ میرے نمبر اسکرین پر ہیں, آپ نوٹ کر لیں اور پروگرام کے بعد آپ مجھ سے کانٹیکٹ بھی کر لیجیے گا, تو پھر میں آپ کو مزید اور بھی ٹریٹمنٹس بتا دوں گی کہ کس طریقے سے آپ کی اسکن بہت جلدی فریش اور گلوئنگ ہو جائے گی. ان کی کاسٹ کیا ہے یہ بھی, کیونکہ بہت سارے لوگ اس کے تو ماشاءاللہ سے یہ میجک کریمز ہیں. اس کے ٹائپ آف وائٹننگ کے لیے جو فریکل کریم ہے اس کی قیمت ہے, اس کی قیمت 250 ہے. اور 2 سے 1.5 ماہ تک عورتیں آپ کو استعمال کیجیے گا. اور خدا نہ خاصہ کسی بھی تکلیف کی صورت اور میرے صاحبزادے جناب مصطفیٰ حکیم انیس الرحمن ہیں, خدا نہ خاصہ کوئی ہے. اور ہربل کا کوئی سائڈ افیکٹ نہیں ہے. یہ حکمت بہترین علاج کرتے ہیں. ایب نارمیلٹی لوگ ہیں ان کا بہترین علاج کرتے ہیں. بالکل آپ ان سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. اچھا رانی صاحب, ابھی ماریا تھی ہمارے ساتھ اور ماریا نے پوچھا کہ میں موئسچر بھی رکھتی ہوں اپنی اسکن کو, اس کے باوجود ڈرائنس بہت زیادہ. جی ہاں, یہ بہت زیادہ اوور ڈرائی. میں نے کہا نا کہ کبھی کبھی سم ٹائم اوور ڈرائی اور اوور آئلی اسکن, اس کے ساتھ پرابلم آتی ہے. سب سے پہلے تو اندرونی طور پر اپنے کو فٹ کرنے کے لیے جو ایک پیک آپ استعمال کر لیجیے. ٹھیک ہے. رائل جیلی ایک ایسی دوا ہے, یہ شہد کا ایکسٹریکٹ ہے, اور اس کے لیے کبھی میں ایک پروگرام کروں تو شاید پورے اس کے فوائد پر پھر بھی روشنی نہ ڈال سکوں. سوال پوچھوں, اجازت ہے؟ دیکھیے, جو شہد ہے ہنی, وہ تو اٹ سیلف میں سمجھتی ہوں کہ رب کی طرف سے ایک نعمت ہے. یہ میڈیسن بھی ہے, یہ غذا بھی ہے, یہ علاج بھی ہے, اس میں ہر چیز موجود ہے. تو اس کا بھی ایکسٹریکٹ نکالا, اس کا بھی ایکسٹریکٹ اس طرح کے, جب تھوڑا سا مجھے ڈیٹیل میں بات کرنی ہوگی کہ جب شہد کی مکھی اپنا چھتا بناتی ہے, چھتا ہوتا ہے جب بناتی ہے تو کریم کلر کا ہوتا ہے, لیکن بہرحال شہد کی مکھی جو ابتدا کرتی ہے وہ شہد کی مکھی کا جو چھتا ہے وہ ملکہ مکھی ہی اس کی ابتدا کرتی ہے. اور ملکہ چونکہ وہ کوئن ہے تو اس کی جو غذا ہے وہ بھی عام شہد نہیں ہے, وہ رائل جیلی اپنے استعمال میں رکھتی ہے. اور یہ رائل جیلی تمام جتنے بھی پھول اور پھولوں کے اوپر سے جو پالن ہے وہ اس کو سک کر لیتی ہے اور اٹھا لیتی ہے, پھر اس کو اپنے پیٹ میں ڈال کر اس کو بالکل صاف کر کے منہ کے ذریعے اس کو نکالتی ہے. اور کچھ کھانے شہد کے چھتے کے اندر وہ بنا لیتی ہے مخصوص, اور اپنے فارغ وقت میں یہی جو رائل جیلی بنتی ہے اسی کو وہ استعمال کرتی ہے. اس کے علاوہ کچھ اور استعمال نہیں کرتی. ایک چھتے میں سے جتنا شہد نکلتا ہے اس سے 1/4 بلکہ سمجھے 10 حصے سے بھی کم رائل جیلی اس شہد کے چھتے میں موجود ہوتی ہے. شہد کا چھتا اگر نکالیں تو اس میں سے پہلے رائل جیلی نکلتی ہے. اس کو ایکسٹریکٹ کرنے کے لیے جرمنی میں سب سے زیادہ کام ہوا ہے, اور جب جرمنی کے سائنسدانوں نے رائل جیلی نکال لی اور بنا لی تو انہوں نے کہا کہ ہم نے ایک ایسی دوا تیار کر لی ہے جو دنیا کے ہر مرض کا علاج ہے.
अच्छा, रॉयल जेली सर के बालों से लेकर पैरों के नाखून तक हर बीमारी का एक मुकम्मल और शाफी इलाज है। इसका इस्तेमाल कैसे करना है? जैसे हमारे पास जो रॉयल जेली है, इसका 1 पैक रोजाना पीना होता है बड़ों के लिए, और 12 साल तक के बच्चों के लिए आता है। उसके ऊपर निशान है, जी बिल्कुल मैं आपको दिखाती हूँ। इसके ऊपर एक निशान है, और ये निशान सबसे पहले जो मेरे साहबजादे मुस्तफा साहब जो इलाज करते हैं, वो भी सबसे पहले अपने इलाज की इब्तिदा इसी से करते हैं, और वही कहते हैं कि पहले आप एक रॉयल जेली को अपनी बुनियाद बना लें, ताकि जो ऐसी बीमारियां हैं जिनका मुझे पता नहीं है, आपको पता नहीं है, लेकिन आपके अंदर पल रही हैं, तो वो एक ही पैक अल्लाह के फजल से आपकी हर बीमारी को कंट्रोल कर देगा। इसको किस तरह किसी चीज में मिला के पीना? नहीं, बिल्कुल नहीं, इसको डायरेक्ट पीना होता है। इसकी ये 10 स्ट्रॉज हैं जो मेरे सामने हैं, और एक स्ट्रॉ को इसके अंदर बल्कि आपको मैं दूंगी कि आप इसको पिए। इस दौरान जवान इसको फौरी तौर पर पी लेते हैं। जी, एक कॉलर शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। वालेकुम सलाम। आपकी सुना, मैं बिस्मिल्लाह बात कर रही हूँ। कौन बात कर रही हैं? मैं बिस्मिल्लाह बात कर रही हूँ। माशाअल्लाह, कैसी हैं आप? बिस्मिल्लाह। मैंने ना ये पूछना था डॉक्टर साहब से कि ना मेरी मम्मा का ना एक्सीडेंट हो गया था। अच्छा, तो ना उनके मुंह पे काफी निशानात है, भाई का भी हुआ था, भाई के मुंह पे भी निशानात है। तो एक तो ये क्वेश्चन पूछना था, एक ये पूछना था, मैं गैस से जल गई थी, हाथ मेरे ना हल्के हल्के हाथों पे निशानात पड़ गए हैं, तो वो क्या मतलब साफ पर? जी हाँ, हाथों पर ना जलने के निशानात है। तो मतलब बताया है वो, और भाई का भी बताया कि एक्सीडेंट के बाद निशान पड़ गए हैं। मेरी शहजादी, हम डिस्कस करते हैं ऑन एयर, आप अपना जब आपको सुन लीजिए कर लें तो मैं मजीद स्ट्रॉन्ग क्रीम आपको बनाकर भेज दूंगी, क्योंकि जो ये निशानात हैं आपके हैं या आपकी मदर के हैं, एक आएगा इंशाअल्लाह ताला। मैं आपको यही अपनी तो आप यही लगाइए, यही मंगाइए, लेकिन कम से कम 6 से 8 माह जरूर इस्तेमाल करें इंशाअल्लाह। आपकी अम्मी के, आपके भाई के निशान होते हैं ना, उसके बाद आपकी स्किन इतनी खराब हो जाती है कि बहुत मुश्किल हो जाता है उसको रिकवर करना। बट जिस तरह आप एक पेन से सुराख करें। हम अभी ब्रेक ले रही हूँ, तो ब्रेक में हम ये कर लेते हैं, ठीक है जी? तो एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद आपसे मिलते हैं। सलाम पाकिस्तान। In Pakistan overnight, or set the agenda for politics, culture, and change in Pakistan overnight, or win prizes for reporting in Pakistan overnight. Maybe that's why there's only one newspaper that covers the nation like it deserves to be covered, and that's The Nation. कहते हैं, और रानी आपा हमारे साथ मौजूद हैं अपनी बहुत सारी जिंदगी के तजर्बों को इन बॉटल आज हमारे साथ यहाँ पे बैठी हैं। होता है कि आप किसी तरह की कोई एक चीज एक रिसर्च के बाद मार्केट में लेकर आए और लोगों में इंट्रोड्यूस करवाएं, और फैमिली भी होती है इंसान की, लेकिन उसके साथ साथ लोगों के लिए भी आप सर्व कर रहे होते हैं माशाल्लाह। तो मैं उसके लिए जरूर आपको बहुत ज्यादा थैंक यू भी करना चाहूंगी रानी साहिबा। अच्छा, अभी जो कॉलर थी हमारे साथ, उन्होंने जिस तरह 2-3 अपने प्रॉब्लम्स पूछे, तो मैं अनाउंस कर दूं कि अगर आपके साथ बहुत ज्यादा कुछ क्रिटिकल इश्यूज हैं तो जो नंबर्स मौजूद हैं रानी आपा के स्क्रीन पर, आप इन्हें नोट कर लें, और प्रोग्राम के बाद आप तफसीलन मजे से इनसे बात कीजिएगा, या आपको समझाएंगी भी और आपको जो है वो मशवरे भी जरूर देंगी। वालेकुम सलाम। कौन है हमारे साथ? मैं रेशम बात कर रही हूँ लाहौर से। क्या बात है रेशम आपकी, कैसी? रानी आंटी से अपने बालों के सिलसिले में कुछ बात करनी है। अच्छा, क्या प्रॉब्लम है आपके बालों का? मेरा हेयर फॉल प्रॉब्लम है, और वाइट भी बहुत ज्यादा हो गए हुए हैं, इवन के लंबे भी नहीं होते, बहुत लाइट हैं, बहुत ज्यादा गिरते हैं, तो मुझे इसका कोई सोल्यूशन चाहिए। मैं चाहती हूँ कि मेरे बाल थोड़े से
मतलब कि वो भी हो जाएं और लंबे हो जाएं और थोड़े से गहरे हो जाएं। ठीक है, और वाइट जो हेयर फॉल प्रॉब्लम है वो खत्म हो जाए। ठीक है, हम डिस्कस करते हैं। बहुत बिल्कुल, बालों का जो मसला है, सर के बालों के लिए हमारा एक तेल है रानीज हेयर टॉनिक के नाम से। तेल को हमने टॉनिक का नाम इसलिए दिया कि अल्लाह के फजल से ये इतना पावरफुल है, गिरते हुए बाल पैदा करता है, बाल घने लंबे काले मजबूत करता है, सब गारंटी के साथ करता है। और सफेद बालों के लिए तो ये है कि सबसे पहले जो बाल आपके सफेद हो गए वो तो हो गए, लेकिन मजीद आगे नहीं बढ़ेंगे। और ये प्रॉब्लम आजकल बच्चों में भी हो रही है। तो सबसे पहले ये घर के हर फर्द को अपने लिए लाजिम और मलजूम करार देने की रानीज हेयर टॉनिक, क्योंकि तेलों का कोई साइड इफेक्ट नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे हर वक्त अपनी दुआओं में याद करते रहते हैं। ऑयल है ये? हाँ, ऑयल है, जस्ट लाइक ऑयल, और ऑयली है। और इसको कम से कम 2 रातें जरूर लगा कर रखें। और ये कॉन्सेप्ट अपने जहनों से निकाल दीजिए कि 2 घंटे 1 घंटे आधा घंटा कोई इतनी देर में कोई चीज भी आपको फायदा नहीं दे सकती। आप ये तेल इस्तेमाल करें। और हद ये है कि जिनकी आईब्रोज के बाल गिर गए हैं वो अपनी आईब्रोज पर भी लगा सकते हैं, लैशेस पर भी अपने बिल्कुल आहिस्तगी से लगाए। और बर्द हजरात जो गंजे हो गए वो भी इसको लगाए तो उनके गंजपन में भी बाल आ जाएंगे। लेकिन इसके साथ शैम्पू भी शर्त है कि हमारा ही इस्तेमाल करना होगा, है वो फायदा पहुंचेगा। एक कॉलर, अस्सलाम वालेकुम। हेलो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। इतनी प्यारी सी कॉलर कौन है हमारे साथ? महविश बात कर रही हूँ, आप कैसी हैं? मैं ठीक हूँ महविश, आप बहुत प्यार से बोलती हैं माशाल्लाह। थैंक यू सो मच, आप भी बहुत प्यार लगती हैं मुझे, आपका प्रोग्राम भी बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू सो मच महविश। आप कहाँ से कॉल कर रही हो? मैं कराची से बात कर रही हूँ। अच्छा, क्या पूछना चाहेंगी आप रानी आपा से? रानी बाजी से बात करनी थी। जी अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम रानी आपा। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह, माशाल्लाह, बहुत प्यारी लग रही हैं। बहुत शुक्रिया। अच्छा रानी आपा, मुझे आपसे बात करनी थी। मैं अपनी भाभी को लेकर आई थी आपके पास, आपके पास नहीं सॉरी, आपके साहबजादे के पास लेकर आई थी। थोड़ा सा लाउड बोलो। थोड़ा सा लाउड बोले। हाँ बेटा। हेलो। ओहो, आई एम रियली सॉरी महविश, मैं वेट कर रही हूँ, आप दोबारा से कॉल करो। आपकी आवाज सुन के बहुत अच्छा लग रहा है। मेरे ख्याल है मुस्तफा साहब के पास आप आई होंगी। आपका जो भी मसला है, आप अगर दोबारा आपकी कॉल मिल जाती है तो जरूर हमसे डिस्कस करें, वरना नंबर हमारे स्क्रीन पर है। बेटा महविश, अगर मैं भूल नहीं रही हूँ तो शायद वही साहिबा हैं जो बेऔलादी का इलाज करा रही हैं हमारे साहबजादे से। तो बेटा आप उनसे कांटेक्ट कर लीजिए। उनका क्लिनिक सुबह में 11 से 1 और शाम में 5 से 8 होता है। इंशाल्लाह आपका मसला हल हो जाएगा। और अच्छा, मैं आऊंगी उस तरफ। हमारी एक कॉलर थी जिनका ब्रेक से पहले हम भूल गए उनके सवाल को शामिल करना। उन्होंने डाई के हवाले से बात कही। जी, डाई के लिए उन्होंने बात की। और बेटा सबसे पहली बात ये कि रानी हर्बल का डाई मार्केट में आ चुका है, लेकिन शो में किस्मत हर्बल अभी डार्क कलर में ही है, ब्लैक और ब्लैक ब्राउन दोनों ही डार्क कलर है। ये आपके सामने है। रानी हर्बल, नो केमिकल, इस स्लोगन को फॉलो कीजिएगा। और अल्लाह रब्बुल इज्जत का एहसान है कि हम पाकिस्तान का एक ऐसा हेयर कलर बनाने में कामयाब हो गए हैं जो टोटल हर्बल है। और इसमें ये अमोनिया फ्री है, पानी के साथ इसकी डाइल्यूशन है। जिन लोगों को हेयर कलर से एलर्जी की प्रॉब्लम थी, अल्लाह के फजल से वो भी नहीं है। आप इसको जरूर इस्तेमाल करें। अगर आपको ग्रे हेयर्स का प्रॉब्लम है तो आप इसको इजीली अप्लाई कर सकते हैं और आप इजीली एंजॉय, क्योंकि कुछ लोगों को एलर्जी हो जाती है। जी हाँ, बहुत ज्यादा एलर्जी हो जाती है। और पहले इसको भी, जिनको बहुत सीवियर एलर्जी है, वो भी रानीज हर्बल के हेयर कलर को भी थोड़ा सा अपनी एलर्जी टेस्ट के लिए या तो गर्दन के किसी हिस्से पर या अपनी कोहनी पर कम से कम 24 घंटे लगाकर आप टेस्ट करें, ताकि आपके दिल से ये वहम भी निकल जाए। ओके, एक कॉलर। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। हेलो जी, मैं जैनब बात कर रही हूँ लाहौर से। कैसी हैं आप जैनब? हाँ जी, मैं ठीक हूँ। मैंने रानी आपा से बात करनी थी। बात कीजिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। रानी आपा, मैंने ये पूछना था तो इसके लिए कुछ बता दें। मेरी शहजादी बताने के लिए बताते हैं। थैंक यू सो मच आपकी कॉल। अच्छा रानी, अब आप ये देखें कि चेहरों पे दाग धब्बे की सबसे ज्यादा कंप्लेंट्स हैं, जितनी भी हम कॉल्स भी शामिल करते हैं। चेहरों के दाग धब्बे की एक मेन वजह ग़िज़ा ख़वातीन और तमाम हज़रात जिनको फ्रेकल का मसला है, वो ये समझ लें कि सबसे पहले अपनी डाइट पर तवज्जो दें। खून की कमी की वजह से सबसे पहले ग़िज़ा पर तो तवज्जो दें। रॉयल जेली का अगर एक पैक इस्तेमाल कर सकते हैं तो वेल एंड गुड है, वरना मेरी बहन आप ये दोनों क्रीमें 1 माह की हैं, रात को लगाना है। और अगर आप दिन में एसी में रहती हैं, चूल्हे के पास नहीं
दिन में भी एक बार अप्लाई कर सकती हैं। चीजों को जो है वो समझ नहीं रहे, अगर आपने कोई नाइट क्रीम भी अप्लाई किया है तो सुबह पहले फेस वॉश करें, उसके बाद आप जाके चाहे आप चाय बना रहे हैं या ब्रेड टोस्ट करें, वो चीजें आप बाद में करें, क्योंकि जब अप्लाई हुई हुई क्रीम पर हीट जाती है तो वो आपके कलर को भी डार्क करती है और आपके स्किन पर उससे रैशेस भी हो सकते हैं। ये कुछ प्रिकॉशनरी मेजर्स हैं जिन्हें लेने चाहिए। अक्सर खवातीन नहीं कहती, बस उठी है, बच्चों ने जाना है, नाइट क्रीम अप्लाई की हुई और आप हीट में चली जाती हैं। पहले वॉश करें अपने फेस को और रानी फेस वॉश का ही आप इस्तेमाल जारी रखें तमाम खवातीन और हज़रात। और हमारा ये फेस पॉलिश भी हफ्ते में 2 बार लगाएं। अल्लाह के फजल से इससे बेहतर कोई और इलाज अभी तक मुमकिन नहीं है। और जो लड़कियां खवातीन घर से बाहर जाती हैं धूप में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटीज में या जॉब के लिए, तो वो उनके लिए हमने ये पाकिस्तान का पहला एक ऐसा सन ब्लॉक है जो ड्राई फॉर्म में है और ये 6 कलर्स में है अकॉर्डिंग टू हर स्किन। डार्क स्किन के लिए सबसे डार्क स्किन के लिए 6 नंबर है और सबसे लाइट स्किन के लिए यानी सबसे गोरों के लिए 1 नंबर है। और एक ये येलो बेस है, ये गोरे और कालों सबका फेवरेट कलर है, ये येलो बेस है। इसको अप्लाई करने से कलर एकदम से बहुत ज्यादा वाइट हो जाता है, इसके लिए कोई स्किन की टोन मखसूस नहीं है। इसको तमाम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं, गोरे भी और काले भी येलो बेस। और आप इसे अप्लाई करें, उसके बाद आप ब्लशन लगाएं, ग्लॉस लगाएं एंड यू आर रेडी टू गो एनीवेयर, क्योंकि आप दिन में नॉर्मली इससे ज्यादा आप मेकअप वेयर करते भी नहीं हैं और सनब्लॉक की जरूरत भी आपको इतनी ही है दिन में कि आप इजीली उसको मेंटेन कर सकें। एक कॉलर है, अस्सलाम वालेकुम। हेलो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन है हमारे साथ? जी मैं नाइला बात कर रही हूँ गुजरावाला से। कैसी हैं आप नाइला? जी शुक्र है अल्लाह का। हाँ जी कहिए। मुझे रानी आपा से बात करनी है। बात कीजिए। अस्सलाम वालेकुम रानी आपा। वालेकुम अस्सलाम बेटा। जी मुझे एक तो अपने फेस के बारे में पूछना है, मेरा फेस थोड़ा वाइट हो जाए और ग्लो आ जाए। ठीक है। मैं गुजरावाला हूँ, मैंने इधर से आपकी क्रीम इस्तेमाल की थी लेकिन मुझे इतना ज्यादा रिजल्ट नहीं आया था उस वक्त। और दूसरा मेरा पेट बहुत बड़ा हुआ है, 34 मेरी एज है, तो इसके लिए प्लीज आप मुझे कुछ बता दें, आपकी बहुत मेहरबानी। बताते हैं। राइट, थैंक यू आपकी कॉल। हमारी दोनों ही क्रीमें आपको मिलाकर इस्तेमाल करनी है। आपने कहा पहले इस्तेमाल की रिजल्ट नहीं आया। मेरी शहजादी, मेरी गुड़िया, प्रोग्राम के शुरू में, आखिर में और बीच में केमिकल नहीं है, कोई स्टेरॉइड नहीं है, कोई ब्लीच नहीं है, धीरे धीरे रिजल्ट आएगा। यानी कम से कम 1 माह में रिजल्ट आना शुरू होगा और 6 से 8 माह इस्तेमाल करना है। 1-2 माह के यूजर मुझसे बिल्कुल डिस्कस ना करें, क्योंकि बेटा मैं आपकी स्किन पर काम कर रही हूँ, हर्बल पे काम कर रही हूँ। हर्बल धीरे धीरे असर देता है, जो भी देता है हमेशा के लिए। स्टेरॉइड्स वाली जो चीजें आप क्रीम यूज कर रहे होते हैं, एक तो वो बहुत एक्सपेंसिव है, दूसरा उनका भी जब रिजल्ट आता है तो हार्डली 6 से 7 दिन बाद अगर आप उनको छोड़ देंगे तो वापस आपकी स्किन उधर ही आ जाती है। और देखिए सना, हम इतनी बार बता चुके हैं कि ये हर्बल प्रोडक्ट आप अपनाइए। हम मुसलमान हैं, हर्बल से हमारा एक खास रिश्ता है, जड़ी बूटियों से। जड़ी बूटियों का सभी जानते हैं, कोई साइड इफेक्ट नहीं है। आजकल पार्लर्स में, मेडिकल स्टोर्स पर नीले ढक्कन और पिंक ढक्कन में क्रीमें, व्हाइट बोतल है उनकी चपटी सी, उसमें ये तमाम की तमाम फार्मूला क्रीम्स इस्तेमाल की जा रही हैं। बार बार मैं ही नहीं, मीडिया पे तमाम डॉक्टर्स, तमाम हकीम चीख के आपको बताते हैं, खुदारा ये जहर कातिल है, ये स्टेरॉइड है, अपनी स्किन के दुश्मन मत बनिए। ये 8 दिन में आपको चौधरी का चांद कर देता है और अगले 8 दिन में आपको भूसी का टुकड़ा बना देता है। अच्छा जी, एक जरा चांद को भी आज जब रात में जब शाम होगी तो देख लीजिएगा, उसमें भी अब दाग हैं, वो भी इतना साफ नहीं रहा, हमने उस बेचारे को भी बिगाड़ दिया। एक कॉलर शामिल कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी कौन है हमारे साथ? मैं गजाला बात कर रही हूँ, मेरे को बात करनी थी रानी आबा से। जी आप रानी आबा से बात कीजिए। हेलो वालेकुम रानी आबा। वालेकुम अस्सलाम बेटा। कैसी है रानी आबा? अल्हम्दुलिल्लाह। रानी जी मेरे को ये पूछना था आपसे कि ना मेरी बेटी के चेहरे पे ना बहुत दाने हैं और मुझे ये पूछना था और मेरे को ये बताना था, मैंने आपकी ना फ्रेगल क्रीम इस्तेमाल की। थोड़ी आवाज स्टूडियो में। हेलो। जी कहिए। मैंने आपकी फ्रेगल क्रीम इस्तेमाल की थी, मेरे को बहुत अच्छा फर्क पड़ा था, तो अब मेरी बेटी के लिए भी ऐसा कुछ बता दे जिससे ना दाने सही हो जाए। ठीक है बेटा, हम आपको बताते हैं, ऑन एयर बताते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज। मेरी शहजादी, मैं 12 कहती हूँ कि मुझसे बेहतर कोई पाकिस्तान भर में एक्ने का ट्रीटमेंट नहीं कर सकता। आप क्यों परेशान हैं? फौरी तौर पर जब आप इस्तेमाल कर चुकी हैं ये फ्रेकल और फेनिस दोनों क्रीमें, जो 30 साल के अंदर हैं वो सिर्फ ये इस्तेमाल करें, और जो 30 साल क्रॉस कर चुके हैं दोनों क्रीमों को मिलाकर इस्तेमाल करेंगे। आपकी स्किन को वाइट भी करेंगी और टाइट भी करेंगी। एक्ने के लिए अपनी बेटी को अभी से यही इस्तेमाल कराइए, बल्कि आज ही से, और वो तमाम मर्द हजरात और लड़के
तमाम शहरों में पाकिस्तान के किसी भी शहर में है, हमसे ये प्रोडक्ट इस्तेमाल कर सकते हैं कि इससे बेहतर कोई और इलाज एक्ने का शायद मुमकिन ना हो। इसका पूरा तरीका इंटू उर्दू इंटू इंग्लिश इसमें डिटेल के साथ दर्ज है। इसके अंदर 2 बॉटल्स हैं। इसके साथ ही हमारा फेस वॉश भी इस्तेमाल करें, लेडीज हमारी फेस पॉलिश भी इस्तेमाल करें, जेंट्स और लड़के ना करें, क्योंकि इसके अंदर ब्लीचिंग इफेक्ट है और अल्लाह के फजल से इसके रिजल्ट से भरपूर फायदा उठाइए और आपकी स्किन जब बेदाग हो जाएगी ड्यूरिंग एक्नी, रानी स्प्रेकल और रानी सेनिस या दुनिया की कोई भी क्रीम इस्तेमाल ना करें। इसके लिए फेस पॉलिश है और जब आपकी स्किन से एक्नी खत्म हो जाएगी तो दोनों क्रीमों को मिलाकर इस्तेमाल कीजिएगा और हमें अपनी दुआओं में याद रखिएगा। राइट जनाब, एक कॉलर। अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कौन है हमारे साथ? अस्मा दाऊद जी। अस्मा, क्या पूछना चाहेंगी? ठीक है, मेरी एज 40 है और मेरी स्किन इतनी खराब हो गई है हद से ज्यादा। अच्छा ठीक है, आप अपनी स्किन का ख्याल करती हैं? कुछ स्किन के कुछ नखरे उठाती हैं, कुछ उसका मसाज करती हैं या कुछ भी नहीं? कुछ भी नहीं करती? नहीं। अच्छा, ये तो बुरी बात है ना। कहाँ से बात कर रही हैं? कराची से। कराची। अच्छा, मेरी बहन, मैं आपको ये कहूंगी, हम ऑन एयर डिस्कस करते हैं। अस्मा, थैंक यू आपकी कॉल। मैं ये कहूंगी अस्मा, अगर मेरे पास मेरे पार्लर आ जाए तो मैं आपकी स्किन को देखकर आपको मजीद आपके लिए मालूमात फराहम कर दूंगी। आपको हमेशा मैं यही कहती हूँ कि कम अज कम मंथ में एक बार फेशियल जरूर कराएं, प्रोडक्ट को पहले से फॉलो करें। 30 को बेहतर फेशियल का भी मशवरा दे सकती हूँ। अच्छा, ये रनिया, आप किसी भी उम्र में हो, आपको खूबसूरत लगना आपका हक है और आप स्किन मेंटेनेंस बड़ी इंपॉर्टेंट है। अगर ये टेबल है, अगर ये नया टेबल भी हम यहाँ पर लाके रखेंगे और इसको साफ नहीं करेंगे तो हफ्ते महीने भर बाद ही अपनी ओरिजिनल शक्ल खो देगा। तो हर चीज को मेंटेनेंस की जरूरत होती है। तो आपका चेहरा जो है वो वैसे तो कहते हैं कि आपके जो है आपकी सोच की नुमाइंदगी कर रहा होता है, लेकिन उसको बेहतर रखना, साफ रखना, उसको फ्रेश रखना आपकी जिम्मेदारी। हमारी नहीं जिम्मेदारी बनती कि हम अपनी माँ को फेशियल नहीं कराना, क्यों नहीं? मैं तो अपनी अम्मा को साथ लेके जाती हूँ। बिल्कुल, और मेरी बेटियां भी मेरी बहुत, आप यकीन करें, ड्रेस के मामले में, कपड़ों के मामले में, स्किन के मामले में, मेकअप के मामले में, ज्वेलरी के बारे में बच्ची गाइड करती हैं, बहुएं तो गाइड करती हैं। आज जब आपकी उम्र थी इस काबिल तो हमने आपको मशवरा दिया, आपकी बेहतरीन परवरिश की, और जब हम इस लायक हो गए कि आप हमारी केयर कर सकें तो फिर आप हमारी केयर करें, और वो बच्चियां बहुत अच्छी होती हैं। इसके साथ ये कि हमारे पास फोन आया था कि स्किन ओवर ड्राई है। ओवर ड्राई स्किन के लिए बेटा सबसे पहले हम आप ये कहेंगे कि नॉर्मल स्किन के लिए भी सर्दियों में कभी कभी वो ड्राई हो जाती है, और जो ओवर ड्राई है वो तो है ही ड्राई। जो बिल्कुल नॉर्मल सी स्किन ड्राई है उसके लिए आप हमारा क्लेंजिंग मिल्क दिन में जितनी बार भी मुंह धोए। अगर नॉर्मल सी स्किन है तो एक बार रानीज फेस वॉश के बाद आपका चेहरा गीला है, हाथ भी गीला है, रानीज क्लेंजिंग मिल्क चंद कतरे ले चेहरे पर, हाथों पर मसाज करें, उसके बाद टिश्यू ऑफ कर लें तो पूरे दिन आपकी स्किन नर्म नाजुक और मुलायम रहेगी। और जब सीवियर ड्राइनेस है तो हमारी 2 क्रीम है, वाइट, एक रानीज अल्ट्रा वाइटनिंग मसाज क्रीम है जो कि व्हाइट कलर की बॉटल है, और एक लेमन मसाज क्रीम है जो इसके नीचे है। इन दोनों क्रीमें मुझसे किसी एक का इंतखाब कर लेंगे। नॉर्मल है वो वाइटनिंग जो है वाइटनिंग के साथ है। अपने चेहरे पर, अपने हाथों पर, अपने पांव पर, अपनी गर्दन पर, समटाइम अपनी बॉडी पर, जो छोटे न्यूबॉर्न बेबीज हैं उनको भी मसाज की जरूरत है, तो ये मसाज क्रीम इस्तेमाल करें। आप इससे बहुत ही अपनी स्किन को फ्रेश, आप इन प्रोडक्ट से फायदा उठा सकते हैं। थैंक यू सो मच रानी आपा कि आप आई और आपने काफी सारी चीजों की अवेयरनेस दी। और मैं यहाँ लूंगी एक छोटा सा ब्रेक और मिलूंगी आपसे ब्रेक के बाद। सलाम पाकिस्तान।